Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads, and in this lecture, we are going to talk about the MCQs of elementary school classroom in Islam. Guys, this is the second poem of Flamingo, which is really important as far as your upcoming examination is concerned. If you want to read the summary, short answer type questions of this poem, you can visit our website that is www. I'm writing it on the board. Our website is www.brainylads.in, wherein you find hundreds of notes, not only of economics but also of English, physics, chemistry, maths, business studies, accountancy, and much more. So, guys, we recommend you to go there and visit our website to find a lot more. So, without wasting much of the time, let's move on to the first multiple choice question of elementary school classroom in Islam, written by Stephen Spender. Got the point? So, guys, what is the theme of this poem? The theme of this poem is education in slums. Education in slums. And as you know that, what kind of education is provided in slums? So we can say that pathetic or poor quality of education is provided over there. Got the point? So this is the theme, and this poem is written by Stephen Spender, which is a very basic question. Stephen Spender is the poet of this poem. The name of the poem is An Elementary School Classroom in Aslam. Got the point, guys? So you have to remember theme of the poem, name of the poet, and name of the poem. Got the point, guys? Let's move on to the first MCQ. From the first extract, far, far from gusty waves these children faces. You must have gone through the poem. So MCQs को discuss कर लेते हैं, guys. Name the poem. That is an elementary school classroom in a slum. Let's move on to the second, third, and fourth question. Who is the poet of an elementary school classroom? That is Stephen Spender. What has the paper seeming boy inherited from his father? Has he inherited property, money, shares, a disease? He has inherited a disease. So what is the right option, guys? D is the right option. Which poetic device has been used in likes rootless weeds? Guys, like jahan aa jaye, as jahan aa jaye, and whenever there is a comparison using the words like or as, so what is the right answer, guys? Simile is the right answer. If you want to go through the notes of poetic devices or literary devices, you can visit a website. You will find 30 poetic devices which can be the part of your upcoming examination. Got the point, guys? Let's move further. आगे बढ़ते हैं, guys. What does the word pallor means? Pallor का meaning आपको बताना है. Pallor का क्या meaning होता है? Healthy pale appearance? No. Unhealthy pale appearance? Yes, this is the right option. Healthy appearance? No, none of these नहीं होगा, guys. So what is the right option? B is the right option. Which poetic device has been used in paper seeming boy? पेपर सीमिंग बॉयज में गाइस मेटाफर यूज की गई है. पन नहीं है, जुगमा नहीं है, नन ऑफ दीज है. इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ पन जुगमा, you can visit our website, that is www.brainylats.in. And guys, do not forget to share this video with your friends, because this is really important as far as your upcoming examination is concerned. Next question is, which poetic device has been used in His Eyes Live in a Dream? See, eyes are non-living, and non-living things have been given the quality of human beings, that is of dreaming. So which poetic device is that? Personify किया गया है. So the right answer is personification. इनके मीनिंग और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं हमारी साइट पे जाके. मेटाफर नहीं है, पन नहीं है, नन ऑफ दीज होगा नहीं. सो व्हाट डज द वर्ड स्टंटेड मीन? स्टंटेड क्या होता है, गाइस? स्टंटेड का मीनिंग देख लेते हैं एक बार. स्टंटेड का मतलब होता है, गाइस, इम्प्रॉपरली डेवलप्ड, और यू कैन से दैट अनडेवलप्ड. गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ते हैं. Which poetic device has been used in far far from gusty waves? Guys, इसमें दो poetic devices है. far far, अगर दोनों को देखा जाए तो it is repetition, repetition, और अगर हम far from को देखें तो that is alliteration. So whatever the option is, जो भी option हो आप उसको carefully go through कर लीजिए. अगर repetition और alliteration आता है, so the right answer would be both of these. तो आंसर क्या हो जाएगा? both of these हो जाएगा. Got the point? Let's move further. Look at the options: alliteration, repetition, personification, both A and B.
So what is the right option guys? Both can be. Which poetic device has been used in with rat size? तो guys ये metaphor है, comparison किया गया है without using the words like or as. Which facilities are being provided to the children studying in slum? All the facilities, no facilities are being provided. Good atmosphere and teachers are not there, so none of these होगा नहीं. So B is the right option. आगे बढ़ते हैं. Let's look at question number 12th, 13th and 14th. 12th में है what does the word gusty means? gusty का मतलब breezy, windy, stormy तीनों होता है, तो right option is D. What does the word weeds means? weed unwanted plants होते हैं guys. Very simple question with very simple answer. weeds का मतलब wanted plants नहीं होता, ये दोनों नहीं है guys, unwanted plants होता है. Why is the head of the girl down? आपको बताना है कि जो tall girl है, जो फर्स्ट स्टेंजा में एलाबोरेट किया गया है, बच्चों के बारे में बात की गई है, टॉल गर्ल के बारे में बात की गई है, पेपर सीमिंग बॉय के बारे में, स्वीट अननॉटेड यंग बॉय के बारे में, हुज आईज लिव इन अ ड्रीम. तो उसमें से एक क्वेश्चन आया व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल डाउन? उसका जो हेड है वो डाउन क्यों है गाइज? ऑप्शंस देखते हैं. फॉर शी हैज़ नॉट डन हर वर्क, नो. नॉट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट होमवर्क. फॉर एवरीबडी मेक्स फन ऑफ हर, नो. फॉर शी इज़ वीक एंड एम्बेरस ड्यू टू हर बिहेवियर, नो. नन ऑफ दीज गाइस. ऑप्शन नहीं है, ये टाइपिंग एरर है. तो हर हेड इज डाउन बिकॉज ऑफ पोवर्टी. हर हेड इज डाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज जनरेटेड थ्रू पोवर्टी. आपको पता है अगर आप गरीब हैं तो यू वॉन्ट बी कॉन्फिडेंट. इन रेयर केसेस में देखा गया आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप गरीब हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा. करेक्ट. So once again the question है why is the head of the tall girl down? For she has, तो none of these. ये repeated question है guys, इसको avoid करना है. तो 15th question वही है. Why does the poet 16th question देखते हैं एक बार. 16th में क्या है? 16th, 17th and 18th question. What does the poet mean by paper seeming boy? क्या मतलब है? Healthy and muscular boy, no. Hale and hearty boy, no. Lean and skinny, yes. None of these नहीं आएगा. तो paper seeming, जो पेपर की तरह लग रहा है guys, मेटाफर यूज़ किया गया है यहाँ पे इस लाइन के अंदर. पोएटिक डिवाइस जो है, तो कंपैरिजन किया गया पेपर से, और पेपर आपको पता है लीन और स्किनी होता. व्हाट इज द चाइल्ड सिटिंग इन द बैक बेंच ड्रीम ऑफ किस चीज़ का ड्रीम देखता है वो? बीइंग रिच, नो. बीइंग स्क्विरल, प्ले स्क्विरल्स गेम, स्टे इनडोर्स, नो. वो स्क्विरल का गेम खेलना चाहता है. ही वांट टू स्टे आउटडोर्स. वो बाहर जाना चाहता है. ही वांट फ्रीडम. उसको फ्रीडम चाहिए जैसे कि स्क्विरल के पास होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट डज स्क्विरल गेम सिंबलाइज? स्क्विरल का गेम क्या सिंबलाइज करता है? बॉन्डेज, नो. स्लेवरी, नो. फ्रीडम. बैकवर्डनेस भी सिंबलाइज नहीं करता गाइस. स्क्विरल इज एज फ्री एज वी आर. जितने हम फ्री हैं उतनी स्क्विरल फ्री होती है. शी कैन गो वेयर एवर शी वांट्स, शी कैन डू वट एवर शी वांट्स. तो गाइस क्या सिंबलाइज करता है स्क्विरल का गेम? फ्रीडम सिंबलाइज करता है. which the child is aspiring of. The child who is sitting at the back benches, he is a cute child. He doesn't have any disease as other children of the slums have. बाकियों की तरह नहीं है, और वो फ्रीडम चाहता है. He wants to go outside, he wants to play, he wants to stay outdoors. Got the point guys? So that was all about extract number 1. Let's move on to extract number 2. Stanza number 2. Stanza 2 is on sour cream wall donation Shakespeare head cloudless at dawn civilized home. आप सभी ने पढ़ लिया होगा. तो क्वेश्चंस देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. व्हाट इज द रियल वर्ल्ड फॉर दीज चिल्ड्रन? मैप ऑन द वॉल नहीं है, शेक्सपियर हेड नहीं है, टायरोलीस वैली नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है. सॉरी, ये तीनों तो नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज. इनका वर्ल्ड क्या है गाइस? इनका रियल वर्ल्ड है विंडोज. विंडोज रियल वर्ल्ड क्यों है? बिकॉज थ्रू विंडोज दे गेट टू सी द रियलिटी. इनको रियलिटी देखने को मिलती है. गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4. What all is there on the walls of the classroom? क्या क्या है वहाँ पे? डोनेशंस हैं, yes. ओपन हैंडेड मैप है, शेक्सपियर पोर्ट्रेट है, all of these, yes. तो तीनों चीज़ें हैं guys, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा D, that is all of these. What does the word donation means? Name of the people who donated money, yes हो सकता है. Donors contribution भी हो सकता है. Money is given by people for schools and slum, yes. तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा guys? all of these हो जाएगा. डोनेशंस का मतलब होता है guys मनी डोनेटेड बाय द पीपल. उनके नेम्स जो हैं they are written on the walls. उनके नाम लिखे हुए हैं, उनको क्या बोला गया? डोनेशंस बोला गया. Which poetic device has been used in Shakespeare head? Shakespeare head में कौन सी poetic device यूज की गई है guys? ऑप्शंस हैं आपके सामने. मेटाफर, एंटीथीसिस, एपिथेट. फटाफट जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आके कि which poetic device has been used. Before we move on, हम आगे बढ़ते हैं. शेक्सपियर हेड में चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं. चौथा ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन है पन.
तो गाइज इसका आंसर आपको बताना है, हमने छोड़ दिया है इसका आंसर कि विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज। गाइज इसका जो आंसर है दैट इज पन। देखिए हेड है, यहाँ पर दो मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक तो हेड का यानी सिर का, और एक हेड जो है वो पोर्ट्रेट का भी मीनिंग कन्वे कर रहा है गाइज। तो जब एक वर्ड दो मीनिंग कन्वे करती है तो दैट इज कॉल्ड पन। क्या बन जाता है? पन। अगर आप पन के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, एंटीथीसिस के बारे में या और भी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, यू कैन गो टू अ वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट द लेसन रिलेटेड टू पोएटिक डिवाइसेस। व्हाट इज टायरोलीज वैली फेमस फॉर? टायरोलीज वैली किसके लिए फेमस है? बेल शेप्ड फ्लावर्स के लिए गाइस, बेल शेप्ड फ्लावर्स के लिए। सो व्हाट इज द राइट आंसर? फ्लावर्स। Which poetic device has been used in future painted with a fog? Future painted with a fog, ये आपको बताना है कौन सा है? मेटाफर है? नो। एंटीथीसिस है? नो। एपिथेट है? नो। पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्यों? क्योंकि इसको पर्सोनिफाई किया गया। डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे पोएटिक डिवाइसेस वाले लेसन्स को गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, 8th एंड 9 देखते हैं। व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट द थिंग्स प्रेजेंट ऑन द वॉल? ऑल ऑफ देम आर यूजफुल, ऑल ऑफ देम आर यूजलेस। तो और ऑप्शन नहीं बनते गाइस, सारे के सारे क्या है? यूजलेस है। व्हाट इज शेक्सपियर हेड इन द स्टैंजा? शेक्सपियर हेड क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ ए शेक्सपियर, यस। बी हेडेड, नो। और नोवेल भी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। सो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर। करेक्ट। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है। Which poetic device has been used in civilized home riding also की? तो गाइस इसका आंसर है personification। अभी तक तो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि बिल्डिंग्स जो है वो राइड नहीं कर सकती, ह्यूमन की क्वालिटी है वो दी गई है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं अगर है तो इसके अंदर personification है डी ऑप्शन। सो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? personification। Which poetic device has been used in awarding the world its world? यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है तो दिस इज रेपिटेशन एज वेल, और पर्सोनिफाई भी किया गया है क्योंकि वर्ल्ड कैसे किसी को अवॉर्ड कर सकता है? गॉट इट? वर्ल्ड को कैसे अवॉर्ड किया जा सकता है? अवॉर्ड तो सिर्फ ह्यूमंस को किया जाता है, और ह्यूमंस की क्वालिटी अगर नॉन लिविंग चीज को दी जाए तो इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। गॉट इट? वाई व्हाट हैव द वॉल्स बीन कंपेयर टू? वॉल्स किससे कंपेयर की गई है? सॉर क्रीम के कलर से। इसका कलर कैसा है? सॉर क्रीम जैसा है। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्लम? फ्यूचर हमें पता है उनका पुअर फ्यूचर है, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, ब्लर्ड है, ग्रेट नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा नहीं, ब्लर्ड इज द राइट आंसर। उनका फ्यूचर ब्लर्ड है गाइस। बोला गया है कि द फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग। आई मीन देयर इज नो विजन, देयर इज नो फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन हु इज रीडिंग इन दैट स्लम, in that elementary school located in a slum. What does the phrase awarding the world its world? Guys, it is very important. It is crucial question as far as your class 12th is concerned. बहुत important question है। Representation of strong and powerful areas. It is the right answer. ये नहीं है guys, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब है कि strong और जो powerful areas हैं they must be awarded। जो मैप है उनको अवॉर्ड कर रहा है, गरीबों की कोई बात नहीं कर रहा है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट द रिच के बारे में बात की जा रही है, विच इज़ नॉट नीडेड। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आर? नीड ऑफ द आर क्या है? टू टॉक अबाउट द पुअर, टू टॉक अबाउट इक्वालिटी। तो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अमीरों को अवॉर्ड देना, अमीरों के बारे में बात करना, अमीरों को रिप्रेजेंट करना इज ऑफ नो यूज। करेक्ट? सो द राइट ऑप्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एरियाज। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तो वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, आपको वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। What does lead sky symbolize? क्या symbolize करता है guys? Pollution करता है, burden of industrial growth करता है, grey and dull existence of people करता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका कौन सा है guys? All of these. So the right answer is all of these. What does star of words mean? Star of words का meaning क्या होता है guys? Fake promises भी होता है, exhibition of fake things भी होता है, presentation of inaccessible things भी होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा guys? All of these हो जाएगा। Stars of words, fake promises made by politicians भी होता है। What are capes? Capes क्या होता है guys? Strips of land projecting into a body. This is the right answer. ये guys नहीं होते, none of these आ जाएगा, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो what is the right answer? A is the right answer. Let's move further, आगे बढ़ते हैं guys stanza 3 की तरफ और देखते हैं क्या है stanza 3 में। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. Shakespeare को criticize किया गया है because Shakespeare has no importance in these children life. These children who are deprived of the basic necessities, इनको रोटी कपड़ा और मकान ढंग से नहीं मिल पा रहा, what is the use of Shakespeare in their life? That's why he has been called wicked.
और आपने पढ़ ही लिया है, आपके टीचर ने एलाबोरेट कर दिया है, सो यू कैन रिलेट टू दीज MCQs, आप कर सकते हैं। व्हाट डज द पोएट कॉल द मैप अ बैड एग्जाम्पल? मैप को बैड एग्जाम्पल क्यों कहता है? बिकॉज इट टेम्प्ट्स द चिल्ड्रन टू स्टील, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करता है चोरी करने के लिए। व्हाट आर क्रैम्ड होल्स? क्रैम्ड होल्स क्या होते हैं गाइस? क्रैम्ड होल्स होते हैं गाइस होल्स मेड बाय रैट्स। यस, कैट्स नहीं होता, बैट्स नहीं होते, नन ऑफ दीज नहीं होते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? रैट्स हो जाएगा। व्हाई हैव द स्लम्स बीन कॉल्ड फोगी? स्लम्स को फोगी क्यों कहा गया? फॉर दे रिमेन फोगी इन विंटर्स। नो। फॉर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। यस। फॉर दे आर पोल्यूटेड। यस। सो गाइस डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी भी सही है और सी भी सही है। विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन एज बिग एज डूम? गाइस एज से कंपैरिजन है, तो सिंपली द राइट आंसर इज सिमिली। गॉट इट? थर्ड इज द राइट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5th 6th एंड 7th देखते हैं। व्हाट डज द मैप टेम्प्ट द चिल्ड्रन टू डू? टू बिकम थीव्स। बिल्कुल ठीक है, ये थीव्स चोरी करने के लिए। टू मेक अदर थीव्स नहीं होगा, बाकी दो भी नहीं होंगे। व्हाट डज द वर्ड स्लाइली मीन? स्लाइली एक मीनिंग है सीक्रेटली, कनिंगली, स्टेल्थीली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑल ऑफ दीज, तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन एंडलेस नाइट? फटाफट गाइस कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि विच पोएटिक डिवाइस डू यू थिंक हैज बीन यूज्ड इन एंडलेस नाइट? कौन सी है? एंडलेस नाइट आपको पता है नाइट एंडलेस नहीं होती, नाइट का एंड होता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। आप बताइए कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ एक बार। ऑप्शंस हैं आपके मेटाफर, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन। सो द राइट आंसर इज गाइस ऑक्सीमोरॉन। जब भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यूज़ किया जाता है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो वो क्या हो जाता है गाइस? ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। पैराडॉक्स भी कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन पैराडॉक्स एक एब्सर्ड स्टेटमेंट होती है। अपने टीचर को बोलिए कि वो डिफरेंस क्लियर करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराडॉक्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन, आई एम सॉरी। इसके बीच में डिफरेंस आप क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लियर ना हो तो यू कैन कम टू आवर वेबसाइट और वहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन स्किन्स पीप थ्रू बाय बॉन्ड्स? दैट इज पर्सोनिफिकेशन गाइस। स्किन्स पीप कर रही हैं, सॉरी बॉन्स पीप कर रही हैं। बॉन्स एक नॉन लिविंग चीज़ है। नॉन लिविंग चीज़ को जब भी हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ देंगे गाइस, ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स देंगे, ह्यूमन के ट्रेट्स को एट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील? दो ऐसे हैं तो एलिट्रेशन हो जाएगा। एक बार फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं कि विच इज द करेक्ट आंसर। एलिट्रेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th इज व्हाट डज द वर्ड ब्लॉट मीन? ब्लॉट का मीनिंग आपको बताना है। ब्लॉट का मीनिंग होता है गाइस टू मेक अ स्पॉट। वो कहता है कि इनको ब्लॉट कर दो विद ब्लैक कलर, पेंट कर दो ब्लैक कलर से, यानी निशान बना दो ताकि ये दिखाई ना दे। विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन एज बिग एज डूम? यहाँ पर क्या है गाइस? सिमिली है। वेयर डू दीज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम? कहाँ बिताते हैं अपना टाइम गाइस? इस स्लम्स में। और इन स्लम्स को क्या बोला गया? फोगी स्लम्स कहा गया। फोगी नॉट बिकॉज ऑफ विंटर, फोगी बिकॉज देयर इज नो फ्यूचर, द फ्यूचर इज ब्लड। किसका फ्यूचर ब्लड है गाइस? उन बच्चों का, चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग ओवर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th हो गया। 13th विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन? लाइक है तो राइट आंसर इज सिमिली। Why does the poet call Shakespeare wicked? For he has not contributed much to literature. No, उन्होंने बहुत contribute किया है। For he was selfish. No, बिल्कुल गलत है। For his portrait had no significance. क्योंकि जो उसकी पिक्चर लगी हुई है, उसका जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। Children do not know who Shakespeare is. That's why he has been referred to as wicked. Got it? Wicked क्या होता है guys? Wicked का मीनिंग भी याद रखना, अनहोली पर्सन, जो अच्छा आदमी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? विकेड। हिंदी में इसको दुष्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज 15th क्वेश्चन। 15th पे आते हैं, फिर स्टैंजा 4th की बात करेंगे। व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्लैग हीप? स्लैग हीप का मतलब क्या? एरिया ऑफ वेस्ट मटेरियल। यस, फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल स्टेट। हेवन नहीं होता, पुअर सॉल नहीं होता, बैड सोल नहीं होता। वो एरिया होता है जहाँ पर वेस्ट मटेरियल आता है, कहाँ से? इंडस्ट्रियल साइट से। दैट इज कॉल्ड स्लैग हीप। वहीं बैठे रहते हैं वो बच्चे। स्टैंजा 4 की बात करते हैं गाइस। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, आपको पता है कि व्हाट डज द पोएट वांट फ्रॉम देम, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट फॉर देम, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर दीज चिल्ड्रन, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन दिस एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर सब कुछ गिवन है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट वांट टू बी ब्रोकन? पोएट क्या तोड़ना चाहता है? स्कूल्स को नहीं, स्लम्स को तोड़ना चाहता है गाइस। वो चाहता है स्लम्स को क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन स्लम्स को तोड़कर ओपन कर दिया जाए ताकि बच्चों को फ्रीडम मिल सके।
What does the poet mean by history theirs whose language is son? Very important statement guys, बोर्ड में भी पूछी जाती है. That illiterate make history, no. That literate make history, yes. That children studying in slums make history, no. None of these नहीं आएगा. Second option is the best option, that literate make history. जो पढ़ता है, freedom होती है जिसके पास, literate होता है प्लस उसके पास freedom होती है guys, वो ही क्या बनाता है, इतिहास बनाता है. चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th पे. हाउ कैन दीज चिल्ड्रन मेक देयर फ्यूचर ब्राइट? कैसे बना सकते हैं? बाय बीइंग एजुकेटेड, ये तो है ही. बाय बीइंग फ्री भी ठीक है. बाय बीइंग फ्री फ्रॉम इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिसेस. तीनों ऑप्शन सही हैं गाइस. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज. विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन ब्रेक? और ब्रेक 2 बार ब्रेक आ गया गाइस तो रेपिटेशन हो जाएगा. व्हाट आर कैटाकॉम्स? कैटाकॉम्स अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड्स होती हैं गाइस. अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड्स को बोलते हैं. सिमेट्रीज को क्या बोलते हैं? कैटाकॉम्स बोलते हैं. गॉट इट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द स्लम चिल्ड्रन? क्या चाहता है वो? फ्रीडम चाहता है, एजुकेशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस. तीनों चीज़ें चाहता है. विच दे डोंट हैव. दे डोंट हैव गुड टीचर्स. उनके पास अच्छे टीचर्स नहीं है. दे डोंट हैव गुड एटमोसफेयर. उनके पास अच्छा एटमोसफेयर नहीं है पढ़ने का. इक्वालिटी उनको मिलती नहीं, जस्टिस उनको मिलता नहीं. तो पोएट उनके लिए यही चीज़ें चाहता है. ही डजंट वांट मनी, ही डजंट वांट ग्रांट्स, ही डजंट वांट फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़. उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ फ्रीडम और अच्छी एजुकेशन चाहिए. अज्योर का मीनिंग पूछा गया है गाइस. अज्योर का मतलब क्लाउडलेस स्काई होता है. ब्लू स्काई भी बोलते हैं अज्योर को. तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अज्योर का मीनिंग क्या है. विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन लेट देयर टंग्स रन नेकेड? देखिए टंग्स जो है वो नॉन लिविंग है. अगर ये भागेंगी तो इनको पर्सोनीफाई करना हो गया. इसका मीनिंग आप पढ़ सकते हैं हमारे लेक्चर में पोएटिक डिवाइसेस वाले में. पर्सोनीफाई है तो पर्सोनिफिकेशन is the right answer. Which is the right answer guys? Personification. Got it? और डिटेल में आपको पढ़नी है लिटरेरी डिवाइसेस. गो टू अ वेबसाइट. What do green leaf symbolize? Green leaf क्या symbolize करते हैं? Open and green environment. Yes. Green belt of a society. No. Green room नहीं. None of these नहीं guys. Green open and green environment को symbolize करते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे, which I think is the last question. एक बार देख लेते हैं. What does the poet want higher officials, bureaucrats, visitors, inspectors and influential people to do? Poet उनसे क्या चाहता है? To give children a new school? No. To transfer them to private schools? No. To get them justice and equality? Yes. To get them injustice and equality? No. Poet कहता है आप कुछ मत करो, सिर्फ उनको justice दिला दो, equality दिला दो, poor और rich के बीच में जो difference है उसे equal कर दो. जो facilities इनको मिलती है, poor should also get those facilities. जो टीचर्स इनको मिलते हैं वो ही इनको मिलना चाहिए. जो एटमॉस्फेयर इनको मिलता है वो ही इनको मिलना चाहिए. जो सराउंडिंग्स इनको मिलती है वो ही इनको मिलनी चाहिए. इक्वालिटी कर दो और इनके साथ इनजस्टिस ना हो. कोई भी ऑफिसर्स इनका फ्यूचर ख़राब ना करे बाय कीपिंग देम इन स्लम्स. इक्वालिटी कर दो, जस्टिस कर दो. दिस इज़ व्हाट आई वांट. पोएट यही चाहता है गाइस. गॉट इट? एक बार आगे देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं है. So guys, और कोई क्वेश्चन नहीं है from this poem. So that was all about an elementary school classroom in Islam. I hope you would have got to learn something from this video. अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो do share it with your friends and do subscribe to our channel and press the bell icon so that you can get the timely updates. Thank you very much for being with us. Have a nice day ahead.